Good morning students. Welcome to this amazing session of biology. Today we are going to start a new chapter, biomolecules. Now we will understand what exactly are biomolecules. If we look at this word, what does it split into? It splits into two words, bio and molecule. What is bio? Bio का मतलब क्या होता है? Bio means living. Bio means living, and molecules, we all know what are molecules. So molecules that are present in living organisms are biomolecules. Simple. Now if we see it like this, if we see something like this, we can also call it biochemistry. We can also call it biochemistry, or we can also call it as biological chemistry. We can also call it as biological chemistry. Now you all must be wondering कि what does chemistry has to do with biomolecules? बच्चे, chemistry is, अगर हम देखें ना तो it is जीवन का आधार है chemistry. Chemistry means if you look into a cell, if you explore a cell, अगर आप एक cell को observe करते हैं, if you look into its cytoplasm, if you look into its plasma membrane, if you look into its cell organelles, what will you find? You will find nothing but various types of chemical molecules. So biomolecules is nothing but interaction of different chemical molecules. Biomolecules is nothing but interaction of chemical molecules. Therefore we are calling it as biochemistry. Okay, therefore we are also calling it as biochemistry. अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, then you will see कि जितने भी आपके components हैं नेचर में, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, DNA हो गया, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, they are what are they? They are different types of interaction of various types of chemical molecules. आप प्रोटीन्स देख लीजिए, different types of chemical molecules have interacted to form proteins. Carbohydrates, दूसरे टाइप के chemical molecules are interacting. So this is what we have an idea like biochemistry होती क्या है and biomolecules क्या होते हैं. So now we'll understand it in at a more deep level. We have cells. Cell होती है, उसमें क्या होते हैं? We have various types of molecules present in a cell. तो बेटा, जो various types of molecules present हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? The sum total of all the molecules present in a cell are known as cellular pool. The sum total of various molecules present in a cell is known as cellular pool. Cellular pool क्या है? It is the sum total of various types of molecules present in a cell. Cellular pool हो गया. इस cellular pool में हमारे कैसे कैसे compounds आ जाते हैं? इनमें organic भी होगा और inorganic भी होगा, organic भी होगा, inorganic भी होगा. So in a cellular pool क्या है हमारा? Sum total of various chemical molecules या molecules present in a cell. तो उनमें हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा आर दोज कंपाउंड्स विच हैव इसेंशियली अ कार्बन एटम इन देम. इनके पास एक कार्बन एटम होता है. Inorganic compounds, most of them generally do not have a carbon atom in them. इनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, उनके पास जनरली आप ये नहीं देखेंगे. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अगर आप इफ़ यू लुक डीपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स. व्हाट आर प्रोटीन्स? इनमें कार्बन होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं. प्रोटीन्स किनसे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है जिसपे अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एंड वेरिंग आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा होता है. ठीक है. प्रोटीन्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आर
carbohydrates organic in nature? Of course, because these also have carbon, these have carbon hydrogen bonds in them. Then आपके nucleic acids हैं, are nucleic acids organic? Of course, they also have carbon in them, they also have carbon in them. आपके amino acids हो गए. So you have a certain degree of idea कि organic compounds क्या होते हैं. Inorganic compounds, बेटा जैसे मैंने बताया, most of them generally do not have a carbon atom in them and therefore carbon hydrogen atom भी नहीं होगा. Inorganic में हम क्या example ले सकते हैं? Mineral ions. Mineral ions are what? Mineral ions are inorganic compound. Salts and water. Salts and water, they constitute your inorganic compounds. ठीक है. Mineral ions में there are 17 essential mineral in plants and you have around 24 essential minerals in animals. In case of animals, plants में 17 essential and animals में 24 essential. ठीक है. तो अब हमने बात की कि सेल्स में क्या होते हैं बेटा, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं and sum total of all the molecules present in a cell, we call it, what do we call it? We call it as सेल्यूलर पूल. अब सेल्यूलर पूल में आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों आएंगे. हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा, डिफरेंस देखा. अब बेटा इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है. अब क्या करना है, हमें इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है. वो कैसे होगी? फॉर दैट वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट चलाएंगे. फर्स्ट वी विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी रिक्वायर, क्या क्या चाहिए हमें उसके लिए. पहले हम डिटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस डिटेक्ट करेंगे. उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पेस्टल एंड मोटार. व्हाट इज पेस्टल एंड मोटार? क्या है पेस्टल मोटर? क्या है? हम सबके घरों में जनरली अभी तो सबके घर में मिक्सर्स एंड ऑल आ गए, बट फिर भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. क्या है ये मसाला कूटने के लिए घरों में यूज़ करते हैं हम लोग पेस्टल एंड मोटर. पहले हमारे टेक्स्ट बुक्स में आता था एग्जाम्पल, वैद लोग जड़ी बूटी कूटते थे इसमें दवाइयाँ बनाने के लिए. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. नाउ वी हैव अ पेस्टल मोटर. नाउ व्हाट वी नीड इज अ लिविंग टिश्यू. लिविंग टिश्यू, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेजिटेबल पीस. एक वेजिटेबल पीस ले लो, कोई भी वेजिटेबल पीस ले लो, या अगर आपको एक एनिमल मटेरियल चाहिए तो आप लिवर ऑफ अ माउस ले लीजिए, लिवर पीस ले लीजिए या वेजिटेबल पीस ले लीजिए. एंड दैट वी आर गोइंग टू पुट इट इन द पेस्टल एंड मोटर. ठीक है, ले लिया. नेक्स्ट व्हाट डू वी रिक्वायर? We require an acid named as trichloroacetic acid. We need this acid. What is this acid? हमारा एसिटिक एसिड क्या होता है? हमारे एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH3COOH. एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH. इफ वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बेटा, विथ क्लोरीन, व्हाट डू वी गेट? CCl3COOH. यही है हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट. So we are going to pour this trichloroacetic acid in this pestle and mortar where we have originally placed some living tissue, whether it be a piece of liver or a vegetable piece. ठीक है. अब हमने इसे लिया, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, and then what do we do next? इसकी स्लरी बना लेते हैं. क्या बनाते हैं? स्लरी. What is slurry? NCERT uses this word slurry. Slurry means एक गाढ़ा पेस्ट, एक गाढ़ा मिक्सचर, एक विस्कस मिक्सचर. ठीक है. अब एक गाढ़ा पेस्ट हम इसका बनाएंगे, इसे अच्छी तरीके से चर्न करेंगे, कूटेंगे. ठीक है. एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे. अब उस स्लरी का आगे क्या करना है? हाउ डू वी प्रोसेस इट? वी विल सी इट जस्ट नाउ. वी विल टेक अ funnel or a filter, put a cheesecloth inside it or a muslin cloth, fine cloth रख लेते हैं. And then what we do, we pour the slurry that we have prepared with the help of
that vegetable piece or a piece of liver and along with the trichloroacetic acid, जो स्लरी बनाई ना हमने पेस्टल एंड मॉर्टर में, उसे लेके हम इसे पोर कर देंगे इसमें. Now what happens? Some amount of substances pour into the container and comes down. यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा. तो बेटा जो नीचे आ जाता है, the molecules or the solution that settles down in the container, what do we call them? We have a name for it. उसका एक नाम है. क्या कहते हैं उसे? फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं उसे? फिल्ट्रेट. एंड जो ऊपर ही रह जाता है, जो नीचे नहीं आ पाता, विच इज इनकेपेबल ऑफ ट्रैवलिंग डाउन, जो ऊपर ही फंस के रह जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रिटेंटेट. उसका नाम है रिटेंटेट. लेट मी रब दिस वन. जो ऊपर रह गया, जो नीचे नहीं आ पाया, वो हमारा हो गया रिटेंटेट. जो हमारा नीचे छन के आ गया, दैट इज आवर फिल्ट्रेट. इसको समझने में अगर प्रॉब्लम है तो वी विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. हम सबके घर में चाय बनती है हम सबके घर में. क्या करते हैं हम चाय बनाते समय? चाय बनाते हैं, चाय खौलाते हैं, फिर चाय छानते हैं. ठीक है, छानते समय बेटा, छानते समय चाय छानते समय व्हाट डू वी फाइंड? जो चाय छन के नीचे आ जाती है, जो चाय छन के नीचे आ जाती है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट. एंड जो चाय पत्ती है, जो आपके फिल्टर में, जो आपकी छन्नी में जो चाय पत्ती बच गई, उसे क्या कहेंगे? रिटेंटेट. बिकॉज वो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाई आपके सोल्यूशन में, आपके चाय में द चाय पत्ती कुड नॉट डिसॉल्व, देयरफॉर वो ऊपर ही रह गई. देयरफॉर वी कॉल इट एज रिटेंटेट. एंड जो छन के नीचे आ गया, जो चाय है हमारी जो चाय है ना, जो छन के नीचे आ गई, वो हमारी है फिल्ट्रेट. ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्लरी को जब हमने फिल्टर किया, जब हमने उसे छाना, तो जो नीचे आ गया उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, एंड जो ऊपर रह गया उसे कहते हैं रिटेंटेट. सिंपल. Now we will understand what are we supposed to do next. ये हो गया. ठीक है, अब बेटा जो फिल्ट्रेट है, जो नीचे आ गया, what do you think what its molecular weight might have been? क्या हो सकता है? क्या होगा उसका molecular weight? एसिड सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? ये स्लरी जो हमने बनाई बेटा, जिसे हमने छाना है, उसे हमने किस में प्रिपेयर किया है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. एसिड में बनाया है हमने उस स्लरी को, एंड उसके बाद उसे फिल्टर किया. तो मुझे बताइए कि ये फिल्ट्रेट जो है, विल इट बी एसिड सॉल्युबल और विल इट बी एसिड इनसॉल्युबल? ऑफ कोर्स इट विल बी एसिड सॉल्युबल, बिकॉज जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो गया एंड फिल्टर करने के बाद नीचे आ जा रहा है, ऑफ कोर्स इट हैज बीन सॉल्युबलाइज्ड. वो सॉल्युबल हो चुका था, वो सॉल्युबल हो गया एसिड में, इसलिए वो नीचे आया. इसलिए बेटा फिल्ट्रेट इज योर एसिड सॉल्युबल फेज. फिल्ट्रेट इज योर एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट. एंड अब मुझे बताइए, जो रिटेंटेट है, जो ऊपर रह गया, जो नहीं आ पाया नीचे, what do we call that? Is it acid soluble or acid insoluble? Of course it is acid insoluble. Why? Because it could not dissolve in acid. It could not dissolve in acid. वो acid में soluble नहीं हो पाया, इसीलिए ऊपर रह गया. ठीक है, जो solubilize, जैसे चाय में हमने क्या देखा था? चाय बनते समय चाय पत्ती soluble नहीं हो पाई थी, वो नहीं डिजोल्व हो पाई, इसलिए वो नीचे नहीं आ पाई. ठीक है, एंड ऊपर रह गई. उसी तरीके से जो डिजोल्व हो गया एसिड में, वो नीचे आ गया, जो नहीं हो पाया वो ऊपर रह गया, उसे हम कहते हैं रिटेंटेट. और क्या कहते हैं? एसिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट. और जो नीचे आ गया उसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट. और क्या कहते हैं? एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट. ठीक है, अब मुझे बताइए, जो एसिड सॉल्युबल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर साइज कैसे होगी ऐसे कंपोनेंट्स की? ऑफ कोर्स इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा. इनका बेटा मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 18
to 800 डाल्टन, 18 to 800 डाल्टन। एंड ऊपर रिटेंटेट में एसिड इनसॉल्युबल फेज में जो रह गए उनका कितना होगा? ऑफ कोर्स दे हैव अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, तो इनका कितना हो जाएगा? देयर मॉलिक्यूलर वेट बेटा, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर इनकी मॉलिक्यूलर वेट कम है 18 से 800, ना व्हाट इज दिस डाल्टन? सबको कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज दिस डाल्टन? देखिए बेटा, जैसे हमारा केजी होता है, किलोग्राम, लीटर, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ना, वैसे ही डाल्टन इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच वी यूज टू मेजर द मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स, जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, वो है डाल्टन, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो 18 से 800 डाल्टन अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे? ऑफ कोर्स माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। देयरफॉर दीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। The filtrate portion is categorized under micromolecules. The acid soluble phase is categorized in the micromolecules. एंड ऊपर वाला जो रिटेंटेट है हमारा, जो एसिड इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाया, जो ऊपर ही रह गया, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है, ऑफ कोर्स दैट इज योर मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज योर मैक्रोमोलिक्यूल। तो हम इसे कह सकते हैं ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वॉट एवर एनसीईआरटी मेंशंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पर्पस, ठीक है। सो पे वेरी ग्रेट अटेंशन बिकॉज दिस इज योर बेसिक, ठीक है। हमने क्या किया? स्लरी ली, उसको फिल्टर किया, वॉट एवर केम डाउन वी नेम्ड इट एज फिल्ट्रेट एंड दैट वाज एसिड सॉल्युबल। इनकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 18 से 800 डाल्टन एंड दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो ऊपर रह गए रिटेंटेट, जो ऊपर रह गए दे आर एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन एंड दे आर कैटेगराइज्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको सब मिला के दिया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, सब था उसमें। अब उनको अलग अलग कैटेगराइज करने का समय आ गया है। माइक्रोमोलिक्यूल्स बेटा, मैंने बोला था मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन, मतलब द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच मेक अप द बिगर मॉलिक्यूल्स आर इन दिस फेज, आर इन दिस सोल्यूशन, आर इन द फिल्ट्रेट। जो भी मॉलिक्यूल्स आपके अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ऑफ कोर्स they must be categorized under micromolecules because they are the building blocks of macromolecules। तो बेटा आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपके कौन से कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं? आपका अमीनो एसिड आ जाता है, जो बहुत सारे मिलके विच इन ग्रेटर अमाउंट्स गिव राइज टू प्रोटीन्स विच इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड्स। और क्या आ जाएंगे आपके? और क्या आ जाएंगे आपके? न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स गिव राइज टू न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, इसलिए माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे आपके। उसके बाद व्हाट एल्स आपके सिंपल शुगर्स, मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे, इसमें मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स में। दे गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, पॉलीसैकेराइड्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा एसिड सॉल्युबल फेज में हमारे आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कम है। मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? व्हाट शुड बी कीप अंडर मैक्रोमोलिक्यूल? उसमें आ जाएंगे हमारे प्रोटीन्स, हमारे आ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, एक बेसिक डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो के बीच तो समझ में आ रहा है। क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स बेटा, अगर कोई आपसे पूछे
कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स आर जनरली स्मॉल और लेसर इन मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव अ लेस मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट. दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस दिख रहा है. दूसरा, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है. माइक्रोमोलिक्यूल्स बेटा इनके स्ट्रक्चर सिंपल होता है. अमीनो एसिड्स, आपके सिंपल शुगर्स, इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है. इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकराइड्स, दे हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे आर मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स. अमीनो एसिड्स, पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉलीमराइजेशन? पॉली मीन्स मेनी, मेनी माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स. अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन्स बनेंगे. प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स किनसे बनते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स से आपका मैक्रोमोलिक्यूल बनता है. एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं हमारे, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड, उनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? उनका बिल्डिंग ब्लॉक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. उनके बिल्डिंग ब्लॉक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. तो एक बेसिक सा आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा माइक्रो और मैक्रो के बीच. इनके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए. मैक्रोमोलिक्यूल्स इनके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं. क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक है. सो नाउ व्हाट वी डू बेटा, अब हमने पता कर लिया एसिड इंसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल फेज के बारे में. इसके फर्दर एनालिसिस के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं. वी विल, एनसीईआरटी हमें उतना डीप सिलेबस नहीं दिया है, उसने हमें नहीं दिया है. सो वी विल नॉट स्टडी इसके बाद क्या होता है. बट दिस इज समथिंग, दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योर नीट पर्पस. ठीक है. इतना आ गया. अब एक क्वेश्चन. You all must have heard about the term lipid. लिपिड के बारे में सबको पता होगा. अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट दे दूं, इफ आई टेल यू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड, वुड यू बी एबल टू कैटेगराइज इट अंडर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल? क्या आप कर पाएंगे? मैं बोलती हूँ कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट इज 800 डाल्टन, अराउंड 800 डाल्टन. ठीक है. लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 800 डाल्टन. तो वो कहाँ कैटेगराइज होंगे? माइक्रो में या मैक्रो में? माइक्रो में या मैक्रो में? आप बोलोगे कि मैम आपने बताया कि जो भी एसिड सॉल्युबल फेज है उसमें ऐसे सब्सटेंसेस आ रहे हैं नीचे जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कम है. 18 से 800 डाल्टन का ब्रैकेट भी दे रखा है आपने. तो आप बोलोगे कि मैम वो तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे. देखिए बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में वो आएंगे. मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिपिड्स विल बी कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रो मॉलिक्यूल्स. बट इन दिस एक्सपेरिमेंट लिपिड्स आर नॉट फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल फेज. क्यों? लिपिड्स आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फेज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अराउंड 800 डाल्टन, due to which they should have been found in the acid soluble phase. They are not found here. They are trapped in the acid insoluble phase. Why? क्यों? उसका रीजन है lipids are hydrophobic in nature. Lipids are what beta? Hydrophobic in nature. Hydro means water, phobic means, phobia means hating. These are, lipids are what? Lipids are water hating compounds. Lipids are water hating things. They hate water. Lipids hate water. आपने नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं. एक ग्लास पानी में अगर आप घी की कुछ बूंदें डालेंगे, what do you observe? वो घी घुल जाती है या फिर पानी के लेवल पे, सरफेस पे तैरती रहती है? ऑफ कोर्स वो घुलती नहीं घुलती. तेल के साथ भी सेम है, ऑयल के साथ भी सेम है. इफ़ यू पुट सम फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, इट विल नॉट बी सॉल्युबलाइज्ड इन द वाटर. ठीक है बेटा, वो नहीं होगी. क्यों? बिकॉज दे हैव हाइड्रोफोबिक थिंग्स इनसाइड देम. ठीक है. एंड लिपिड घी इज ऑल्सो योर सॉर्ट ऑफ लिपिड. दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर.
they are water hating compounds. तो whenever we use trichloroacetic acid, beta, we use trichloroacetic acid in the experiment. Now while we were conducting the experiment, आपको याद होगा जो एसिटिक एसिड लिया हमने उसमें हमारा वाटर पोर्शन भी था, थोड़ा सा वाटर पोर्शन भी था. डाइल्यूट एसिड लिया हमने उसमें वाटर पोर्शन था. बिकॉज ऑफ दैट वाटर, बिकॉज वी चर्न द इंटायर थिंग इन स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ वाटर जो था एसिड में, इसकी वजह से लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेसिकल्स. वो डिजोल्व नहीं हो पाते उस वाटर पार्ट में. दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेसिकल्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेसिकल्स. एंड इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू सॉल्युबलाइज देम इन द एसिड पार्ट और वाटर पार्ट ऑफ द एसिड. ठीक है, इसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं हो पाते, वो वेसिकल्स बना लेते हैं एंड इसकी वजह से ये नीचे नहीं आ पाते. दे गेट ट्रैप्ड इन द रिटेंटेड. इसलिए बेटा दिस इज द रीजन व्हाई डिस्पाइट लिपिड्स हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 800 डाल्टन, they are found in the acid insoluble part, they are found in the retentate part, they are found in this portion which has not been solubilized in the acid. And अगर आप देखा जाए, अगर molecular weight के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में they should be categorized, but अगर आप इस experiment के according if you judge, then they will be found in the acid insoluble phase. ठीक है. So if any question arises कि where does the lipid portion of the cell goes, लिपिड कहाँ पाए जाते हैं, where are the lipid found? मेम्ब्रेन में किसी भी स्ट्रक्चर के मेम्ब्रेन में जनरली you have lipids. ठीक है, तो while churning them ये वेसिकल्स बना लेते हैं बिकॉज वाटर हेटिंग कंपाउंड्स होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते. सो दे गेट ट्रैप्ड इन द रिटेंटेड पोर्शन, सो दे आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फेज, वो नीचे नहीं आ पाते. पर अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो दे शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटेक्शन. अब हम इनऑर्गेनिक का देखते हैं. आई होप everyone इज क्लियर अबाउट माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन या डिफरेंसेस. फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स what do we do? Inorganic compounds, what do we do? We take a tissue and उसका wet weight ले लेते हैं. We note down its wet weight बेटा. ठीक है, we note down its wet weight. Why? Because every living tissue has considerable amount of water present in it. बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होती है ना लिविंग टिश्यूज में, इसलिए पहले हम उनका वेट वेट लेते हैं, फिर हम उसे ड्राई करते हैं. आपका मैकेनिज्म क्या है ड्राई करने का, वेदर यू ड्राई इट इन द सन और इन द ओवन, दैट इज अप टू यू. ड्राई करते हैं एंड फिर उसका ड्राई वेट नोट डाउन करते हैं. वी नोट डाउन इट्स ड्राई वेट, ओके, एंड देन वी बर्न दिस वट एवर मटीरियल इज देयर ना, जिसको हमने इतना प्रोसीजर हमने फॉलो किया, एंड देन वी बर्न इट. बर्न करने के बाद क्या मिलेगा हमें, व्हाट डू वी गेट? वी गेट ऐश. राख मिलेगी, किसी भी चीज को जलाने से राख मिलती है. वी गेट द ऐश. इट हैज दोज कंपाउंड्स विच वी आर इंटरेस्टेड इन. तो बेटा बर्न करने से क्या हुआ, व्हाट डू वी गेट बाय बर्निंग? आपका जितना भी आपका कार्बन कंपाउंड्स था या जो भी हाइड्रोजन कंपाउंड था, दैट गॉट ऑक्सीडाइज्ड. जब आपने जलाया ना, जो भी आपका लिविंग टिश्यू था उसको आपने जलाया, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, वो निकल जाते हैं. सो योर ऑर्गेनिक थिंग्स आर लेफ्ट आउट. जो बचती है ना ऐश, दैट इज वेरी सूटेबल मटेरियल फॉर analysis of inorganic compound. This ash is then taken for elemental analysis of furthering the presence of detecting the presence of inorganic compounds. ठीक है, वो बहुत tedious process होता है, हमें उतना
नीड पर्पज से वी आर नॉट गोइंग टू डेल्व डीपर इनटू इट. जस्ट इतना समझ लीजिए कि फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स we first take a tissue, note down its wet weight, then we dry it, then we note down its dry weight, then we burn it. Due to burning, all the organic compounds are removed in the form of carbon dioxide and water vapor, because of course oxidation is taking place, and then the ash that we get in return, we use it for further elemental analysis of आपका inorganic compounds. So I hope things are pretty clear to you after this session. Okay, this was our first introductory session of our chapter biomolecules. हम लोग discuss करेंगे the next chapter tomorrow. Hope things are very clear to you. Thank you so much.